Hi everyone, I am Rashmin and welcome back to my channel Budding Gems. So what we will be doing in this session is we will be starting a new chapter of class 7 science, and the chapter name is respiration in organism. We are going to discuss this chapter today in detail. Okay, this session is not only important for the class 7th only, but it is also important for the further classes also, 8, 9, 10th also. This chapter is very much important. Okay, because what you are going to study today, what we are going to discuss today is the base of your further classes. So it is a very important chapter. So please stay concentrated and stay focused for this video, and it will be very helpful for your further classes also and for this class also. Okay, so let's begin with the chapter. So what is the name of chapter? Respiration in organism. So what do you mean by respiration? First of all, to start with the chapter, you should know the meaning of the title. So title is what? Respiration. So respiration का meaning क्या होता है? What is the meaning of respiration? So respiration, we usually say कि respiration is somewhat related to breathing. Okay, but I will say that there is a difference between what is respiration and what is breathing. There is a difference between both of them. Okay, so what is breathing? First we will say first we will understand what is breathing. Breathing means inhale and exhale of air. Inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide is called as breathing. Okay, then जो इनहेल किया ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, ब्लड के अंदर गया, देन सेल के अंदर गया, तो वो ऑक्सीजन ने व्हाट दैट ऑक्सीजन डिड इन द सेल, ऑक्सीजन जो सेल के अंदर पहुंचा, उसने सेल के अंदर क्या रिएक्शन किया, क्या किया, दैट वी विल स्टडी इन रेस्पिरेशन. ओके, तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि जो ऑक्सीजन गया वो कैसे गया बॉडी के अंदर, थ्रू नोज गया, व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स, है ना. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कंप्लीट ब्रीदिंग, कि हाउ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस, देन वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द ब्रीदिंग पार्ट फर्स्ट. So what is breathing? Breathing means, I have already told कि breathing means what? Inhale and exhale. I will write here. Breathing means what? Breathing means inhale and exhale is breathing. Okay, inhale and exhale is breathing. What do we inhale? We inhale oxygen. Inhale क्या करते हैं? Oxygen. So we don't say we inhale oxygen. We write in our definition as, what do we write? We inhale air which is rich in oxygen, and we exhale air which is rich in carbon dioxide. Okay, we say like this. Okay, we inhale air which is rich in oxygen and we exhale air which is rich in carbon dioxide. This is what called as breathing. Okay, now what is the rate of breathing? How many times do we breathe? We breathe, rate of breathing means what? Per minute में कितने टाइम करते हैं? We breathe around 18 times per minute. Okay, but when we do physical work, when we do physical exercise, physical work अगर कुछ ज़्यादा करते हैं, है ना, like exercise, running, cycling, तो ऑटोमेटिकली सांस फूलने लगती है ना. When we are at rest, our breathing rate is normal, हमें पता ही नहीं पड़ रहा है, we are breathing. But when we do exercise, when we do any physical work, तो ऑटोमेटिकली हमें पता फील होता है कि हमारी सांस फूल रही है ना, सांस फूलने लगती है, ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है ना. मतलब वी इनहेल मोर ऑक्सीजन एट दैट टाइम एंड वी एक्सहेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाई डू वी डू दिस? ऐसा होता क्यों है कि व्हाइल डूइंग फिजिकल वर्क ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाती है? ब्रीदिंग रेट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी को फिजिकल वर्क करने के लिए मोर एनर्जी चाहिए रहती है. क्या चाहिए रहती है? व्हेन वी डू मोर फिजिकल वर्क, बॉडी नीड्स मोर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो वो एनर्जी किधर से आती है? जो हमने ब्रीदिंग किया ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ने सेल में जाके क्या किया? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है. ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन जो गया बॉडी के अंदर, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन सेल में जाके इट विल ब्रेक द फूड in the cell, मतलब basically it will break glucose. This everything you will study in detail in respiration, है ना. But I am just telling you this कि you should know कि breathing rate क्यों बढ़ी. कि ऑक्सीजन ने क्या किया? It will break the glucose in the blood to give you what? More energy. Okay,
ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ी कि ऑक्सीजन हमने ज़्यादा लिया, वाई टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, ऑक्सीजन ज़्यादा लिया कि ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी तो मोर ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन ईजीली, तो वो ग्लूकोज मोर ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, विच वी नीड सिंस वी आर डूइंग मोर फिजिकल वर्क। ओके, दिस कंप्लीट अबाउट हाउ ऑक्सीजन ने ग्लूकोज ब्रेक किया, दैट कंप्लीट वी विल स्टडी इन रेस्पिरेशन। बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ कि ब्रीदिंग हमने कैसे करते हैं, ब्रीदिंग का व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड ब्रीदिंग होती कैसे है, मतलब नोज के अंदर ऑक्सीजन गई, फिर व्हाट आर द पाथवे, किस पाथवे से वो लंग्स तक पहुंची, है ना, दोज थिंग फर्स्ट वी विल स्टडी, मतलब वी विल कंप्लीट आवर ब्रीदिंग पार्ट फर्स्ट, देन वी विल स्टार्ट विद आवर रेस्पिरेशन। ओके, सो व्हाट आर द ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व है, द मेन ऑर्गन वी एवरीबडी नो कि मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग इज व्हाट, लंग्स इन्वॉल्व है, बट हाउ मतलब ऑक्सीजन रीचेज द लंग, फर्स्ट यू शुड नो दिस। ओके, तो वी ब्रीथ थ्रू व्हाट, वी ब्रीथ थ्रू अवर नोज से ब्रीथ करते हैं, मीन्स नॉस्ट्रल्स, जो नोज के अंदर जो दो होल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉस्ट्रल्स। आई विल राइट द कंप्लीट पाथवे हियर। ओके, वी ब्रीथ थ्रू व्हाट, नॉस्ट्रल्स, वी ब्रीथ थ्रू व्हाट, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स से एयर किधर जाएगी, ऑक्सीजन किधर जाएगी, नेजल कैविटी, है ना, बिहाइंड द नोज जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। ओके, नेजल कैविटी से किधर जाएगी, फेरिंग्स, थ्रोट, जो थ्रोट रहता है इस पार्ट में एंटर करेगी, तो थ्रोट इज इन टू पार्ट्स, अपर पार्ट को बोलते हैं फेरिंग्स, एंड उसके फेरिंग्स के नीचे का जो लोअर पार्ट रहता है, नेक का लोअर पार्ट जो, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। ओके, दिस इज लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, वॉइस बॉक्स। ओके, लैरिंग्स तक यहाँ तक रीच हो गई ऑक्सीजन, देन उसके बाद में विंड पाइप रहेगा, विंड पाइप के अंदर एंटर करती है ऑक्सीजन, एंटर्स वेयर इनटू द विंड पाइप पर्टिकुलरली रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रैकिया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, ऑक्सीजन एंटर करी ट्रैकिया में, है ना। आई ड्रॉ द रफ डायग्राम हियर, दिस इज ट्रैकिया, है ना, बिलो द नेक पार्ट, यहाँ पर फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, देन उसके बाद में व्हाट इज ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया। ओके, आई राइट हियर ट्रैकिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, विंड पाइप। ओके, विंड पाइप। उसके बाद में वी आर हैविंग टू लंग्स, है ना, तो ट्रैकिया शुड बाइफर्केट नाउ इनटू टू पार्ट्स, वाई, बिकॉज दो लंग्स को प्रोवाइड करनी है एयर, है ना, यहाँ से एयर एंटर हुई है, यहाँ से एयर एंटर, अब इसको बाइफर्केट करना पड़ेगा टू पार्ट्स में, बिकॉज वी हैव व्हाट, टू लंग्स, समवॉट लाइक दिस, है ना, समवॉट लाइक दिस लंग्स, है ना, दो लंग्स है ना, तो दोनों लंग्स के लिए ट्रैकिया शुड गेट बाइफर्केट इनटू टू टू प्रोवाइड एयर टू बोथ द लंग्स, है ना, तो ईच पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रोंकाई, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रोंकाई। ओके, आई विल राइट हियर ऑल्सो, ट्रैकिया के बाद में किधर गई एयर, ब्रोंकाई। ओके, ब्रोंकाई के बाद में किधर गई, देयर आर मैनी ब्रांचेस, ब्रोंकाई के बाद में जो एयर लंग्स में एंटर करेगी, वो एयर जो एंटर करेगी, इट हैव मैनी ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रोंक्यूल्स, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, है ना, ब्रोंकाई के बाद में किधर एंटर करी, ब्रोंक्यूल्स, है ना, ब्रोंक्यूल्स के बाद में फाइनली इट एंटर टू द एल्वियोलाई, दिस इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ द लंग्स, देर आर मिलियंस ऑफ ये बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ब्रोंक्यूल से अटैच रहता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एल्वियोलाई, दिस इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। ओके, है ना, ब्रोंक्यूल्स के बाद में किधर एंटर करेगी, एल्वियोलाई। ओके, नाउ अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, these parts are involved. Okay, now understand properly. पहले nostrils में गई, nostrils means what, nose के जो दो holes रहते हैं that is called as nostrils. nostrils के बाद में nasal cavity में गई, nasal cavity के बाद में this throat part आया, that is pharynx and lower part is called as larynx. उसके बाद में larynx तक आने के बाद में there will be a wind pipe, chest cavity रहती है, जो हमारी chest cavity रहती है, उसके अंदर this pipe will be present, pipe रहेगा, that is called as wind pipe, that is called as what,
ट्रैकिया. विंड पाइप इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज व्हाट? ट्रैकिया. ये ट्रैकिया. ओके, दिस इज ट्रैकिया. देन 2 लंग्स को प्रोवाइड करनी है एयर, तो 2 पार्ट में ट्रैकिया विल बाइफर्केट. नाउ ईच पार्ट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई. ओके, ब्रोंकाई के बाद में देर आर मेनी ब्रांचेस to provide the air to each of these alveoli. This is the main unit of breathing. main unit जिससे air exchange होगी, that is alveoli. तो वो alveoli को air कैसे ट्रांसफर होगी? Through this bronchioles. Bronchi, then comes bronchioles, and bronchioles के अंदर ये attach रहेगा balloon like structure which is called as alveoli. There are millions of alveoli in each of the lungs. ओके, दिस इज द मेन यूनिट जहाँ से एयर ट्रांसफर होगी. अब ये एल्वियोलाई के अंदर, सपोज दिस माई हैंड, माई फिस्ट, सपोज दिस इज एल्वियोलाई. ओके, अब इस एल्वियोलाई के ऊपर क्या होगा? देयर आर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज इससे अटैच रहेगी, है ना. ब्लड कैपिलरी से क्या होगा? ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड आएगा, इट विल एक्सचेंज द एयर. ब्लड आएगा टू द ब्लड कैपिलरी. सपोज दिस इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के ऊपर क्या? मिलियंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है. ब्लड कैपिलरी क्या करेगी? ब्लड को एक्सचेंज करेगी. ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड रहेगा. ब्लड क्या करेगा? जो ब्लड आया है बॉडी से पूरा सर्कुलेट होकर के इधर एल्वियोलाई के पास में, तो दैट ब्लड इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को ट्रांसफर कर देगा. और एल्वियोलाई इज रिच इन ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन आई एल्वियोलाई के पास में, तो एल्वियोलाई इज रिच इन ऑक्सीजन नाउ. तो ऑक्सीजन क्या करेगा? खुद ले लेगा. ब्लड विल टेक द ऑक्सीजन. ब्लड विल टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो एल्वियोलाई को ट्रांसफर कर देगा. दिस इज हाउ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस. ओके, दिस इज हाउ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस. डिड यू अंडरस्टूड अप टू हियर? हाँ, सो ये जो ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? लंग्स के अंदर प्रेजेंट है. यहाँ तक ब्रोंकाई आई थी, फिर ब्रोंकाई के बाद में देयर आर मेनी ब्रोंकियोल्स, और उसके वो एंड होती है एल्वियोलाई में. ओके, और एल्वियोलाई से ये गैसेस एक्सचेंज होगी. एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरी रहेगी. ब्लड क्या करेगा? विल गिव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक द ऑक्सीजन, है ना. एंड ब्लड के अंदर क्या रहता है विच टेक्स ऑक्सीजन? ब्लड कैरी कंटेन हेमोग्लोबिन, है ना. तो हेमोग्लोबिन विल टेक द ऑक्सीजन, है ना. दैट हेमोग्लोबिन का जो भी पार्ट है दैट वी विल स्टडी इन द चैप्टर ब्लड, दैट सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, दैट हेमोग्लोबिन पार्ट वी विल नॉट डिस्कस हियर, बट वी विल ओनली अंडरस्टैंड कि ब्लड ऐसा क्या करेगा? ऑक्सीजन, ये गैसेस एक्सचेंज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा एंड ऑक्सीजन ले लेगा. दिस इज हाउ these are the organs involved in breathing. Okay, I hope you understand up to here. Okay, one more part, that is nostrils. Nostrils के अंदर there are hairs like structure present. We everybody know कि nostrils के अंदर क्या present होता है? Hairs like structure present होता है. तो what is the role of that hair? Why is this nostrils के अंदर, why hairs are present in the nostrils? It should have certain function. So yes, obviously it is having a function. Why is the hair present in the nostrils? Is when we inhale the air, air contain many pollutant, many germs, many pathogens, dust, smoke. These things are present in the air. We all know, है ना? And the pathogen, the germs, whatever are present, that are not visible, है ना? They are invisible to us. But along with the air, when we inhale, the dust or germs might enter our nose, है ना? तो dust, germs, pathogen might enter. तो ये जो नोज के जो ये है, नोज के जो हेयर्स है, नॉस्ट्रिल के अंदर जो हेयर है, उसका रोल क्या है? दे विल ट्रैप दीज जर्म्स. वो जो हेयर है, इट ट्रैप्स दी फॉरेन पार्टिकल्स. जो भी ये फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ व्हेन वी आर इनहेलिंग, तो फॉरेन पार्टिकल को क्या करेगी? वो हेयर्स ट्रैप कर लेगी एंड अलाउ ओनली प्योर एंड फ्रेश एयर to get inside. But sometimes the pathogen enter inside also. The germs or dust might enter inside. मतलब enter हो जाती है. It doesn't get trapped by the air and अंदर enter हो जाती है. But when it enters, it cause irritation in our nasal cavity. Nasal cavity में क्या होता है? Irritation होता है. Irritation होना start हो जाता है. And immediately what happen? Immediately we sneeze. Immediately उस टाइम पे क्या हो जाता है? Sneezing आ जाती है हमें, है ना. एंड वाइल स्नीजिंग, द फॉरेन जो भी पार्टिकल एंटर हुआ है, वेदर इट इज स्मोक और डस्ट और पैथोजन, एनीथिंग जो भी एंटर हुआ है, वाइल स्नीजिंग इट ऑटोमेटिकली कम्स आउट. ओके, सो दिस पार्ट एंड द रेस्ट इज दिस पार्ट. व्हाट आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड. ओके, एंड वन मोर थिंग इज रिमेनिंग.
Yes, but these are the main organs involved in breathing. Okay. Now next is, where are these lungs present? Lungs किधर present होते हैं? Lungs are present in our chest cavity. जो हमारी chest cavity रहती है उसके अंदर. There is a chest cavity and abdominal cavity. Abdominal cavity means what? जिसमें stomach present है, stomach, small intestine, large intestine, वो part. And chest cavity में क्या present होता है? Lungs, heart, है ना? ये present होता है in the chest cavity. Okay. And chest cavity के अंदर since these main organs are present, that is lungs, heart, these main organs are present, so it is protected by rib. Chest cavity is protected by what? Rib cage. Rib cage है हमारे around in the chest cavity, rib cage है. Rib cage का role क्या है? To protect these organs, to protect these organs. Okay. So these organs, that is lungs, are present in our chest cavity. ओके तो दिस इज सराउंडेड बाय व्हाट? रिब्स. रिब्स से सराउंडेड होते हैं. एंड नीचे क्या होता है? दैट इज अ डायफ्राम प्रेजेंट. यहाँ पे नीचे चेस्ट कैविटी के जस्ट बिलो डायफ्राम इज प्रेजेंट. व्हाट इज द व्हाई इज दिस डायफ्राम प्रेजेंट? टू सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. Okay, this diaphragm is present. I'll write here, this is diaphragm. This part I should erase now because these are the organs involved in the breathing, and now we are studying about how breathing takes place, mechanism. Okay, so I'll erase this first. And when you are studying this now, what we are writing here is only the main parts, main things we are writing here. We are not writing the whole chapter question and answer, but the main thing which you should remember, I am writing only those things over here. So whatever I am writing here, you should remember this. It is very important, and you should make a mind map of it. Mind में make a map of it कि पहले air किधर गई, nostrils में गई, then nasal cavity में गई, pharynx, larynx. You should make a map of these things in your mind, है ना. विजुअल इमेज इसको बना लो अपने माइंड के अंदर. अगर इफ यू विल मेक द विजुअल इमेज ना ऑफ वट एवर आई हैव रिटन, इफ यू विल मेक द विजुअल इमेज इन योर माइंड, यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर. ओके, सो वेन एवर आई एम राइटिंग दीज थिंग्स ना, टेक अ स्क्रीन शॉट or otherwise write it down whenever I am writing, but it's not possible since you are listening to the lecture, so it's not possible for at the same time to write. So take a screenshot of it and revise that screenshot. Go through those screenshot 1 or 2 in a day. तो ऑटोमेटिकली दैट इमेज विल बी मेड इन योर माइंड कि अच्छा वहाँ पे गया था, नॉस्ट्रल्स में गया था, देन किधर नेजल कैविटी में गया था, देन फेरिंग्स, लैरिंक्स. दिस इमेज विल बी ऑटोमेटिकली, ये विजुअल इमेज है ना माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली. अगर इफ यू विल सी द स्क्रीनशॉट अगेन एंड अगेन ना, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी मेड इन योर माइंड, तो यू विल रिमेंबर इट ईजीली. सो मेक दिस माइंड मैप, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डेली रिवाइज दो स्क्रीनशॉट, है ना. इफ 2-3 times also you will revise now, you will remember this because it's easy to understand these things कि अच्छा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ओके, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, फिर गैसेस एक्सचेंज हुई. इट्स easy to understand but it's difficult to remember it for a long time, and these things you should remember. This is very much important for your further classes, for your competitive exam also. These things are very important because MCQs comes in your competitive exams. What MCQs types of questions comes. So many times these questions ask what is the structural and functional unit of this lungs. Lungs का main unit क्या है? That is alveoli, है ना. And many question comes, what is the voice box को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? Larynx, है ना. तो these things are right. You take a screenshot and just try to revise those screenshot. Okay. So we were in कि कैसे मैकेनिज्म होता है. सो वी वेर इनटू दिस कि दिस लंग्स आर प्रेजेंट इन आवर चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं लंग्स. ओके, देन क्या होता है? चेस्ट कैविटी दिस लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स, और नीचे देयर इज अ डायफ्राम. इसको बोलते हैं डायफ्राम. दिस पार्ट को बोलते हैं डायफ्राम. ओके, डायफ्राम इज व्हाट? It separates the chest cavity from the abdominal cavity. So what happens when we inhale? जब हम inhale करते हैं, at that time what happens? Ribs moves. Ribs का और जो diaphragm का movement कैसा होता है when we breathe, है ना. So that we are going to discuss now. तो when we breathe, ribs move outward. Ribs कैसे move करती है? Outward, and ribs moves outward and upward. Ribs moves outward. And diaphragms moves किधर? नीचे. Ribs moves outward and diaphragms moves downward. Okay.
तो ये रिब्स अगर आउटवर्ड मूव करी एंड डायफ्राम ने नीचे मूव किया तो व्हाट हैपेंस, स्पेस बढ़ गई है अंदर लंग्स के लिए, लंग्स को स्पेस बढ़ गई तो इट कैन इनहेल द ऑक्सीजन इजीली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जस्ट थिंक दैट कि ये रिब्स से सराउंडेड है और इनहेल करना है, तो रिब्स शुड मूव वेयर टू इनहेल मोर एयर, रिब्स शुड मूव आउटवर्ड, रिब्स आउटवर्ड मूव करेगी एंड डायफ्राम किधर, डाउन साइड मूव करेगा, सो डैट इनहेल स्पेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली इनहेल जो करेगा एयर तो स्पेस बड़ी भी रहेगी तो इनहेल इजीली हो जाएगा, है ना। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हाट हैपेंस व्हेन वी एक्सहेल, जब एक्सहेल करेंगे तो रिब्स विल मूव इनसाइड, रिब्स जो आउटवर्ड हुई थी इनहेल के टाइम पे, एक्सहेल के टाइम पे रिब्स विल मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम विल मूव अपवर्ड। जब ऐसा मूवमेंट होगा, रिब्स का इनसाइड मूवमेंट हुआ, डायफ्राम का अपसाइड मूवमेंट हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हुआ, तो लंग्स विल ऑटोमेटिकली गेट कंप्रेस्ड, स्पेस कम हो रही है तो इट विल एक्सहेल द एयर, it will exhale carbon dioxide. So this is the movement of ribs and diaphragm when we inhale and exhale. Did you understood? Inhale के time पे ribs will move outward and diaphragm will move downward. And while exhale, ribs will move inward, अंदर move करेगी and diaphragm will move upward. So that space क्या हो जाएगी, compact हो जाएगी, तो exhale क्या हो जाएगा, easily हो जाएगा. Okay, this is the movement of ribs and diaphragm when we inhale and exhale. Okay, this is all about breathing part. Breathing part का this much. Did you understood the breathing part? Okay, now alveoli से blood air किधर enter करेगी into the blood. अब blood के अंदर जा करके blood will carry this, blood के अंदर क्या रहता है, hemoglobin. It will carry what, oxygen to all the cell. It will carry oxygen to all the cell, है ना। ऑक्सीजन को ब्लड एल्वियोलाई के अंदर क्या आया था, एल्वियोलाई के अंदर आई थी ऑक्सीजन। अब इसके बाद ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरी क्या करेगी, ब्लड कैपिलरी विल एक्सचेंज द गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी, ऑक्सीजन ले लेगी। ओके, ऑक्सीजन ले लेगी, उसके बाद में ब्लड विल ट्रांसपोर्ट दिस ऑक्सीजन टू ऑल द सेल, टू ईच एंड एवरी सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। तो सेल के अंदर जब ऑक्सीजन गई तो व्हाट दैट ऑक्सीजन विल डू इन द सेल, see that is called as what, respiration, that is we are studying now respiration. तो oxygen will break the glucose, oxygen क्या करेगी, oxygen will break the glucose in the cell, oxygen will break the glucose in the cell to produce what, energy, to produce energy. And at the same time okay, so what happens ke oxygen will break this glucose in the cell, oxygen have reached to each and every cell, oxygen kya karegi, oxygen will break the glucose to produce what, energy. And at the same time these byproduct will be released, carbon dioxide and water will be released, these are the byproduct which will be released during this process. So what is respiration? Respiration is the breakdown of food, है ना, breakdown of food with the help of oxygen to give energy. This is called as respiration. Understood what is respiration? Respiration is the process by which food is broken down by oxygen. Food is broken down by oxygen to give energy. Okay, this is called as respiration. ये ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस हुआ, डिड यू नो ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस हुआ? इन आवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म. उसके अंदर क्या हुआ था, डाइजेशन में वी ईट कार्बोहाइड्रेट के अंदर ब्रोक डाउन हुआ था. वी ईट फूड विच कंटेन व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स. दिस एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन अवर डाइजेशन वाला चैप्टर, है ना. इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो दैट सेशन, गो थ्रू द प्ले लिस्ट, इट इज देयर, द डाइजेशन वाला चैप्टर. तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब ब्रोक डाउन हुआ था इनटू सिंपल सल्यूबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, है ना. वी हैव डिस्कस्ड. तो कार्बोहाइड्रेट जो था वो काय में ब्रेक डाउन हुआ था, इनटू ग्लूकोज. जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट काय में ब्रेक डाउन हुआ था, इनटू ग्लूकोज. ओके, तो वही ग्लूकोज है ये. तो ग्लूकोज सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है. थ्रू एसिमिलेशन वी हैव सीन दीज थिंग्स. द ग्लूकोज वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ था
एंड ग्लूकोज प्रोड्यूस हुई थी। तो ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हुआ है, ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन बाय दिस ऑक्सीजन to produce energy and carbon dioxide and water will be released. This is called as respiration, and more specific this is called as aerobic respiration, because respiration are of two type, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. तो this is अगर more specific बोलेंगे तो this is only aerobic respiration. Aerobic respiration. Aerobic respiration is what? Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा टू गिव एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज्ड. दिस एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द मल्टी सेलुलर, जितने भी एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उन सब के अंदर दिस एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. मीन्स व्हाट? रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड देयर इज अनदर रेस्पिरेशन कॉल्ड एज, अनदर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेम थिंग, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा. दिस वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक. एनएरोबिक में सेम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, एंड इन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? तो इट टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दैट इज बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. ओके, तो उसके अंदर हाउ द रिएक्शन गोज, कैसे ग्लूकोज ब्रेक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट वी विल सी नाउ. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एरोबिक रेस्पिरेशन. कि glucose is broken down with the help of oxygen to give you energy, and carbon dioxide and water are the byproduct which is released during this respiration. Okay, now we will see anaerobic respiration. Okay, how anaerobic respiration takes place? Anaerobic respiration. ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन का में होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज यीस्ट. एग्जांपल क्या है इसका? यीस्ट. ओके, विच इज गिवन इन योर बुक. तो यीस्ट का एग्जांपल वी आर टेकिंग. अदरवाइज इन ईच एंड एवरी ऑल द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, बट वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ यीस्ट, है ना. एंड द सेम रिएक्शन गोज विद एवरी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो व्हाट, हाउ द रिएक्शन गो? सेम थिंग, ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन बट क्या? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. Absence of oxygen. Glucose will be broken down in the absence of oxygen. And what is produced? Alcohol is first. तो main obviously energy will be produced. We are respiring what to produce energy, है ना. तो main thing सबसे पहले obviously energy will be produced. Okay, because we respire. Why do we respirate? To produce energy, है ना. Oxygen will break the glucose to provide what? Energy. For the metabolic activity, for all the physical work, whatever we are doing, to provide energy to each and every cell, we do respiration. So glucose is broken down but in the absence of oxygen in the case of anaerobic organism. Anaerobes, है ना. तो glucose in the absence of oxygen will provide energy, and what is produced? Alcohol will be produced plus carbon dioxide. Energy produce हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो रही है, बट इंस्टेड ऑफ वाटर एल्कोहल विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, हमारे केस में एरोबिक में क्या हुआ था? हमारे केस में एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हुआ था, बट यहाँ पे क्या हुआ था? वाटर प्रोड्यूस हुआ था, है ना. इन द केस ऑफ एनाएरोब्स एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, तो दिस एल्कोहल प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज व्हाई दिस यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग व्हाट? इन बियर. जो बियर, इन मेकिंग बियर एंड वाइन, है ना. एंड ऑल्सो इन मेकिंग ब्रेड्स के मेकिंग, फॉर मेकिंग ऑफ ब्रेड ऑल्सो दिस यीस्ट इज यूज्ड. यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि व्हेन दे मेक ब्रेड, तो क्या करते हैं? जो डो होता है उनका, ब्रेड बनाने का जो डो रहता है, दे ऐड यीस्ट टू द डो. वाई? जो यीस्ट क्या करता है? यीस्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो डो बिकम व्हाट? फ्लफी. डो कैसा बन जाता है? फ्लफी बन जाता है. दैट इज व्हाई वी विच ब्रेड वी ईट, द ब्रेड विच वी ईट, दैट इज फ्लफी. बट व्हाट वी ईट, चपाती,
Chapati is not fluffy, but breads are fluffy. Why breads are fluffy? Because they add yeast to the bread, and yeast release carbon dioxide, due to which bread become fluffy. Okay, so yeast is used in making beer, wines and breads, and this is how anaerobic respiration का जो reaction goes like this. Glucose will be broken down in the absence of oxygen, provide energy, and alcohol and carbon dioxide will be released. But the energy which will be produced will be less in amount. जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारे में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज वेरी मच मोर, है ना, ज़्यादा रिलीज होती है एनर्जी, मोर एनर्जी विल बी प्रोड्यूस एंड हियर लेस एनर्जी विल बी प्रोड्यूस. ओके, नाउ anaerobic respiration only doesn't happen in the case of unicellular organism, but it also happens in our body when, because we take oxygen, but I am saying anaerobic respiration also takes place in our body. When it happens, तो when we do more of physical work, जब हम ज़्यादा physical work करते हैं, तो as we already have told कि जब हम ज़्यादा physical work करते हैं हमारी breathing rate क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना. We breathe more, we inhale more oxygen, but जितना हम फिजिकल वर्क करते हैं तो सेल डिमांड्स मोर ऑक्सीजन. वी ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें. लिसन टू द रिलेशन व्हाट आई एम सेइंग. वी आर डूइंग मोर फिजिकल वर्क, सो वी नीड मोर एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए ग्लूकोज को, ग्लूकोज नीड्स ऑक्सीजन, है ना. ग्लूकोज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज को ब्रेक करेगी टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, है ना. तो मोर ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑब्वियसली वी आर टेकिंग मोर ऑक्सीजन व्हेन वी आर डूइंग फिजिकल वर्क, आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, वी इनहेल मोर ऑक्सीजन, बट that much oxygen is also not sufficient for the cell. Cell demands more oxygen, सेल को और ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज द वे वी आर डूइंग फिजिकल वर्क, तो उसके लिए एनर्जी की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. बट जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उतना ऑक्सीजन वी आर नॉट गेटिंग. ऑल्दो वी आर द ऑक्सीजन रेट बढ़ गई है, इनहेलेशन की रेट हमारी बढ़ गई है. जो हमारी नॉर्मल 18 थी पर मिनट एट रेस्ट, वो बढ़ के कितनी चली गई है, 25 टाइम्स पर मिनट हो गई है ना. 24-25 टाइम्स पर मिनट हो गई है व्हेन वी डू फिजिकल वर्क. बट दैट मच इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉर द सेल. सेल डिमांड्स मोर ऑक्सीजन, बट उतनी इनहेल हम नहीं कर रहे हैं. वी इनहेल 25-26 टाइम्स वी इनहेल पर मिनट, बट दैट मच इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सेल. सेल को और ऑक्सीजन चाहिए, विच वी आर नॉट एबल टू टेक उससे ज़्यादा, है ना. तो एट दैट टाइम व्हाट सेल डू, सेल प्रोड्यूस एनर्जी एंड इट विल ब्रेक द ग्लूकोज एनारोबिकली. जितनी ऑक्सीजन है उतनी तो ठीक है, पर और एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो ऑब्वियसली सेल विल प्रोड्यूस एनर्जी, बट वो जब ब्रेक करेगा ग्लूकोज को तो इट विल ब्रेक एनारोबिकली. So how that reaction goes, we will see through that. Understood what I explained? I hope you understood. See, again we will write the reaction, we will understand in it more better. Anaerobic respiration and aerobic, है ना. anaerobic respiration in human में कैसे होता है ना, when we do physical work. तो same glucose will be broken down, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ग्लूकोज कैसे ब्रेक हो रहा है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कैसे क्या प्रोड्यूस होगा, दिस टाइम लैक्टिक एसिड विल बी प्रोड्यूस, एनर्जी विल बी प्रोड्यूस. ऑब्वियसली एनर्जी के लिए हम सब कर रहे हैं, तो एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, है ना. ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. प्लस दिस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल नॉट बी रिलीज, बिकॉज क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है ना. तो दिस टाइम लैक्टिक एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेल. लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगी सेल के अंदर. ओके, ये लैक्टिक एसिड क्या करेगी, बिकॉज वी ब्रीथ एनाएरोबिकली ना, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल नॉट बी रिलीज एज इन केस ऑफ एरोबिक, है ना. एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज हो गया था, एनाएरोबिक के टाइम पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगी. अब ये लैक्टिक एसिड क्या करेगी, लैक्टिक एसिड विल एक्यूमुलेट इन द सेल. सेल के अंदर ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करेगी एंड इट विल कॉज व्हाट, मसल क्रैम्प. हमें मसल क्रैम्प्स होगा, पैर दुखने लगेंगे, है ना. तो वी ऑफन से कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया ना तो मसल क्रैम्प्स हो गए हैं, तो व्हाट वी डू, वी टेक अ हॉट वाटर बाथ, है ना.
मतलब इन जनरल व्हाट वी डू, वी गो एट रेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लिए, अब वी शुड टेक सम रेस्ट। जैसे ही हम रेस्ट पे जाएंगे तो धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन की जो डिमांड थी बॉडी की वो स्लोली इट विल कम टू नॉर्मलाइज। जो बहुत ज़्यादा इनहेल कर रहे थे, द इनहेलेशन ब्रीदिंग रेट विल गो टू नॉर्मल, है ना। जब हम रेस्ट पे बैठेंगे ब्रीदिंग रेट विल गो टू नॉर्मल, फिर नॉर्मल ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलेगी। तो जब नॉर्मल ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड हुई, सफिशिएंट ऑक्सीजन, तब क्या करेगी वो ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन विल गो टू द सेल, ऑक्सीजन सेल के अंदर गई, सफिशिएंट ऑक्सीजन नाउ, क्योंकि वी आर एट व्हाट, रेस्ट। तो ऑक्सीजन जो सफिशिएंट गई, दैट विल ब्रेक दैट लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या कर रही है, मसल क्रैम्प कर रही है। स्लोली मसल क्रैम्प विल गो, हाउ इट गो, ऑक्सीजन जो है वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक करेगी। लैक्टिक एसिड जो ब्रेक प्रोड्यूस हो गया था सेल के अंदर एक्यूमुलेट, लैक्टिक एसिड विल बी ब्रोकन डाउन बाय दिस ऑक्सीजन, एंड दिस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी रिलीज्ड। ओके, दिस इज हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज इन द सेकंड स्टेप। व्हेन लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन आकर के ब्रेक करी, then carbon dioxide and water will be released. This is how anaerobic respiration takes place in our body when we do physical work. This is all about aerobic respiration in our body, anaerobic in microorganism, and anaerobic in our body when we do physical work. I hope you understood this session. What we have done in this session is we have done about breathing, है ना, what are the organs involved in breathing, what are the movement of ribs and diaphragm when we breathe, and then we have discussed about respiration. Okay, so I hope you understood this session well, and if at all, go through this session whatever I have explained, again watch the video one more time and then go through your books. I am sure that you will understand then. Once you will again watch the video, the same video, watch it again and then go through your book, then I am sure that you will understand everything. Okay, if at all you didn't understood anything, or if you have any queries, any doubt, ask me in the comment section. We will try to solve it in the next session. Okay, till then study well, and it's not that whole day you have to study only for 2 hours, but with full concentration you will understand everything. Okay, so study well, and if you like my video, then like my channel, share it with your friends and subscribe my channel. Okay, till then, goodbye.